Hello everyone, my name is Shamanawat. I welcome all of you once again in the series of permutation and combination. मुझे पता है लेक्चर नंबर 1 काफी लंबा हो गया था, बट क्या करें? We need to learn this. We need to understand the concept from its core, right? So this is lecture number 2 of permutation combination, where we are going to understand the factorial for permutation and combination. For factorial notation, we will learn factorial notation, and because we have the formula of permutation, formula of combination, which can be expressed like NPR when we say it is n factorial by n minus r factorial, and NCR is n factorial by r factorial into n minus r factorial. So what is this factorial notation? We need to understand this very well. Okay, so this entire chapter is all about, this entire lecture, not chapter, this entire lecture, second lecture is all about understanding factorial notation. All right, so let's get started. Factorial, it means it is product of first n natural number which start from 1. Okay, natural number starts from 1. So n factorial represented by what? The product of first n natural number. Okay, for example, if I say 4 factorial, so it should be what? Product of first 4 natural number, मतलब 1 into 2 into 3 into 4, या फिर आप रिवर्स में ही बोल सकते हो 4 into 3 into 2 into 1. That is what? 4 factorial. Similarly, 5 factorial is what? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. अब एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को हाईलाइट करूं 4 3 2 1, so can I say this 5 factorial is nothing but 5 into 4 factorial? ये 4 factorial दिख रहा है आपको? We can say 5 factorial is what? Equal to 5 into 4 factorial. या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, this 5 factorial is nothing but, this 5 factorial is nothing but 5 तो है ही, इस 4 को क्या मैं लिख सकता हूं? 5 minus 1 चलेगा, लिख सकता हूं, एन फैक्टोरियल वहां पे था ही साइन with 4 factorial, right? So if you agree with this, then can we say n factorial equal to n into n minus 1 factorial? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को आपको नोट करना चाहिए. n factorial equal to n into n minus 1 factorial. Okay, 0 factorial is what? 1. 0 का factorial 1 होता है, नेगेटिव का कोई factorial नहीं होता है. Okay, so factorial is possible only of the natural number. एक या 0 exception है, 0 का factorial होता है 1. Factorial is nothing but number of arrangements. So in how many ways can I arrange? Nothing. There is only one way, nothing, right? So इसलिए 0 का factorial हम लोग बोलते हैं 1. -1 का कोई factorial नहीं है और decimal का कोई factorial नहीं है. Factorial is always of natural number. 0 exception है, 0 factorial होता है 1. Okay, decimal, negative, इनका कोई factorial value नहीं होता है. एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, आपको ये होमवर्क याद रखना है, आपको ये होमवर्क करना है. You need to learn all the values from 1 factorial till 10 factorial. ये आपको याद करना है. 1 factorial is 1, 2 factorial is 2 into 1, 2. 3 factorial is what? 3 into 2 factorial. Basically 3 2s are 6. 4 factorial is 4 into 3 factorial. 3 factorial कितना है? 6. 5 factorial is same way, goes on. Okay, तो ये वैल्यूज आपको याद रखना है. 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial 120, 6 factorial 720, 7 factorial 5040, 7 factorial 5040, 5 factorial 40320. 40,320 भी याद रख सकते हो, बट मुझे ज्यादा अच्छा लगता है 40320, 40320. 9 factorial is 362880. 9 factorial is 362880. 9 factorial is 362880. और 10 factorial तो एक 0 आगे लगा दो, इसके आगे एक 0 आगे लगा दो, हो गया. ओके, तो ये अपने को याद रखना है. 5 अभी कुछ आप एक्सरसाइज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए. मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 इज 120.
7 फैक्टोरियल एक्सरसाइज करो। व्हाट इज 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल? अभी इसमें फैक्टोरियल कॉमन मत निकालना, ओके? डोंट डू डोंट डू इट लाइक 7 माइनस 5 का एक साथ फैक्टोरियल, ये मत करना, ये पाप है। दे आर डिफरेंट। 7 factorial is different and 5 factorial is different. You can't take factorial common. Okay? हाँ, आप कुछ और कर सकते हो, जैसे 7 फैक्टोरियल को आपने लिखा क्या? 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, चलेगा? सोच के देखो, फिर से बोलता हूँ। 7 फैक्टोरियल को आई कैन से व्हाट? आपको ये याद है? n फैक्टोरियल इक्वल टू n, अगर बाहर निकालो तो बचता क्या है? n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट? सो 7 फैक्टोरियल में से 7 बाहर निकाला तो बचेगा क्या? 6 फैक्टोरियल। अब इस 6 फैक्टोरियल में से 6 भी बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या? 5 फैक्टोरियल। या तो ये 7 6 भी बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या? 5 फैक्टोरियल। बचा? ओके, सो 7 फैक्टोरियल आई कैन राइट एज व्हाट? 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल। एक एक निकालते जाओ, एक एक कम करते जाओ। 5 फैक्टोरियल एज इट इज है। अब ये एक तरीका है इजी, आपको तो पता है, हालांकि आप डायरेक्टली लिख सकते हो 7 फैक्टोरियल इज 5040 एंड 5 फैक्टोरियल इज 120, दोनों को माइनस कर दो, बट एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से भी कर सकते हो। सो यू कैन गो अप टू दिस। नाउ यू वांट टू सब्सट्रैक्ट, तो हमने क्या किया यहाँ पे? इसमें से 5 फैक्टोरियल बाहर निकाला, यहाँ से 5 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल इज आउट। बचा क्या? 7 6 जा 42 एंड दिस इज -1, 42 -1 इज 41। ओके, 120 into 41, ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको ये नंबर याद है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको नंबर याद है 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, बट इमेजिन इफ दिस वुड हैव बीन लिटिल बिगर नंबर, लेट्स से 15 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल, तो कैसे करते? फैक्टोरियल को कॉमन निकालना आसान तरीका होता इन सच केस, राइट? कैसे करते इसको? इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? 15 बाहर निकालो तो 14 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल में से 14 बाहर निकाला तो 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल में से 13 बाहर निकाला तो बचा कितना? 12 फैक्टोरियल। Now we'll stop here because here again we have 12 factorial, and now we have an opportunity to take 12 factorial common from both terms. So I can say 12 factorial into बचा के अंदर 15 into 14 into 13 -1, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, आगे नहीं बताऊंगा, अभी ये डिफिकल्ट है, मैं कैलकुलेशन आप खुद से कर लो या कर सकते हो खुद से। डोंट डोंट बी लेजी। आई नो आई एम आल्सो बीइंग लेजी, बट यू डोंट बी लेजी। ओके, मैं टीचर हूँ, मैं हो सकता हूँ, तो आप नहीं होना, स्टूडेंट। ओके, 12 फैक्टोरियल का आप बोल सकते हो 10 फैक्टोरियल इंटू 11 इंटू 12, सो 11 इंटू 12 हो जाएगा आपका 132, 132 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। या इट्स अ टास्क, मल्टीप्लिकेशन करके यू कैन, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से दैट दिस इज हाउ यू कैन टेक कॉमन आल्सो। ओके, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था समझाने का और ये एग्जांपल लेने का। व्हाट इफ वी हैव दिस? अगेन यू कैन use the taking common method. Here you can say the 7 factorial is what? 7 बाहर निकालो 6 फैक्टोरियल बचेगा, 6 बाहर निकालो 5 फैक्टोरियल बचेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि देखो, आप खुद देखो, यू कैन इजीली कैंसल 5 फैक्टोरियल एंड यू कैन से 7 6 जा 42, राइट? और भी देख सकते हो आप, 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको भी आप क्या कर सकते हो? यू कैन से 12 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, एंड डिनोमिनेटर में यू ऑलरेडी हैव 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कैंसिल कर लो इसको। अब क्या बचा? दिस इज 2 फैक्टोरियल, कितना होगा? 2। मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार और कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा? 66। दैट्स योर आंसर, राइट? Okay, so that's how you this is what factorial notation mean, and that's how you can simplify it. बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो प्रॉपर्टी है, n फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वी आर गोइंग टू यूज इट अ लॉट ऑफ टाइम टू सिंप्लीफाई इट। ओके,
अब ये फैक्टोरियल नोटेशन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्या रिलेशन है, कैसे फॉर्मूला बना, मैं उसका आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन द प्रीवियस लेक्चर। आई एम गोइंग टू यूज दिस। एक में क्वेश्चन मैंने बनाया। क्वेश्चन ये है कि डू यू हैव 8 अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लेट्स से 8 पीपल, 8 फ्रेंड्स, दे वांट टू सिट ऑन 5 चेयर्स। 8 फ्रेंड्स, मैं लिख दूं क्या? 8 फ्रेंड्स, पर बहुत गंदा लिखूंगा, हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है नहीं। 8 friends want to sit on 5 chairs. ओके। और एक के ऊपर एक नहीं बैठेंगे वो। ओके, सो 8 फ्रेंड मतलब उसमें से 5 लेके 5 बैठेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम कोई दूसरे 5 के कॉम्बिनेशन बैठेंगे, ऐसा होगा। ओके, 8 friends want to sit on 5 chairs. In how many ways it is possible? In how many ways it is possible? Okay. Or you can say how many ways 8 friends can arrange themselves in on 5 chairs. 8 friends, in how many ways 8 friends can arrange themselves on 5 chairs, ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझो। सो काउंटिंग टेक्निक आप अप्लाई करोगे, आप क्या बोलोगे? ओके, नाउ हियर देयर इज नो कंडीशन, आई कैन स्टार्ट अरेंजिंग फ्रॉम एनी प्लेस, राइट? सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई विल से व्हाट? हियर I can, we have either 8 of them. We have 8 possibilities: A, B, C, D, E, F, G, H. Either one of them can sit on the first position. So how many possibilities there on the first position? 8. And on the second position, how many? You remember? ये अब फ्रेंड्स है ना, I mean humans है, they cannot repeat themselves. ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे भी जॉन बैठ रहा है, यहाँ पे भी जॉन बैठ रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। अगर जॉन पहले प्लेस पे बैठा है, he cannot sit on the second place in the single combination, right? So he cannot repeat itself. So he cannot repeat himself. So when you have humans, when you have such condition, so you need to understand, ये सिर्फ डिजिट्स के साथ ही है कि रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड हमें क्लियर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम डिजिट्स, मैं आई हैव हार्डली कम अक्रॉस एनी सिचुएशन वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटिंग। सो अल्फाबेट्स रिपीट हो सकते हैं, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, बट व्हेन यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव पीपल, यू हैव सम ऑब्जेक्ट्स, सो ये ऑब्वियस हो जाता है कि दे आर नॉट रिपीटिंग इफ दे वांट टू अरेंज अमंग themselves in themselves on given places. Clear it now? So 8 friends, in how many ways they can arrange themselves on 5 chairs? So either one of them can sit on the first place. I hope you understood that it is obvious that repetition is not allowed. ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देने वाली बात नहीं है। आपको एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो वो एग्जाम में भी मेंशन नहीं करेंगे कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। क्यों? बिकॉज ये ऑब्वियस है। इफ यू प्लेस वन ऑब्जेक्ट एट वन प्लेस आउट ऑफ 8 ऑफ देम, आप किसी भी एक को वहां रख दोगे तो एक जो है वो नेक्स्ट पोजीशन पर नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा तो ये खाली हो जाएगा। एंड वी वांट टू फिल ऑल द प्लेसेस एट द सेम टाइम, राइट? सो repetition not allowed in that case. The next position can be filled in how many ways? 7 ways. सीखा है हमने क्या? repetition is not allowed, तो आप एक एक कम करते जाओगे possibilities. Then next place, 6 ways, 5 ways and 4 ways. Yeah, this is how it should be. Counting technique. How many ways 8 friends can arrange themselves on 5 chairs? So these many ways. Conjunction यहाँ पे and होना चाहिए. You have 8 possibilities for the first place and 7 possibilities for the second place, because you have to fill all the places at the same time. We cannot say for the first place you have 8 possibility or you have 7 possibility for the second place. और का मतलब क्या हुआ कि या तो आप फर्स्ट पोजीशन फिल कर रहे हो या फिर सेकंड पोजीशन फिल कर रहे हो, या तो आप फर्स्ट चेयर फिल कर रहे हो या फिर सेकंड चेयर फिल कर रहे हो। ऐसा नहीं है। There are 8 of them. You want to fill, they want to arrange they want to arrange themselves on this 5 given chairs. So it has to be fill all at the same time, right? At the same time, right?
माइंड में वर्ड्स, हाँ, मैं इसको फिर से बताऊँगा, फिर से रिपीट करूँगा कहाँ आ रहा है यूज़ ये। सो ये काउंटिंग टेक्निक से हो जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब किसी इंटेलिजेंट महानुभाव ने सोचा कि यार ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब दिस इज़ 8, 7, चलो छोटे नंबर्स के लिए ठीक है, बट व्हाट इफ देयर आर बिगर numbers, then how to represent them in this easy way. So for that they have introduced like permutation and combination formula. अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे यहाँ पे derive कैसे होता है वो। So uh, here you have this. Now आपके पास you have 8 friends and 5 chairs. ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा-सा फैक्टोरियल बनाने के लिए, जस्ट बिकॉज़ ऑफ आई वांट टू मेक इट फैक्टोरियल। आंसर आपका आ गया यहाँ पे, बट ऐसा थोड़ा और इसमें उंगली करते हैं हम लोग ना, फैक्टोरियल बनाने की कोशिश करते हैं। सो for 87654, if I want to make factorial, I can multiply by 3 to 1. And आंसर तो आपका यही है ना, so I need to divide also by 3 to 1. मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊंगा, but अभी have patience. Now numerator, do you see numerator is 8 factorial and denominator is 3 factorial, है ना? हमें अभी भी चैन नहीं पड़ा। हमने क्या किया, इसको तो ठीक है, ये 3 हमें अच्छा नहीं लग रहा because there is no mention of 3 in the question. I have 8 and I have 5. So let me write this 3 as 8 minus 5. चलेगा? और इसी को ही बोल दिया परम्यूटेशन, परम्यूटेशन अरेंजमेंट। Okay, this is nothing but, if you see, this can be written as 8p5, which is what, 8 factorial by 8 minus 5 factorial. Yeah, understood? Just to form the formula, this is what is done. ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू फैक्टोरियल नोटेशन अरेंजमेंट से परम्यूटेशन कैसे बना, right? So that is how we got that if there are n friends want to arrange on r places, r chairs, then the number of arrangements, ये arrangement ही है ना, this is arrangement, right? Order matters. कौन A पहले बैठा है या B पहले बैठा है, order matters. So wherever order matters, it is what? Arrangement. ये हमने पहले लेक्चर में सीखा है, right? So if 9 friends want to sit on 4 chairs, n friends want to sit on r chairs, can be represented as what? NPR. इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन से हम लोगों का NPR बना, या इससे हमारा फैक्टोरियल नोटेशन बना। वेल, we are going to discuss NPR more in detail in the next lecture, lecture number 3. Yeah, इस लेक्चर में इतना ही। I just wanted to explain, wanted to make you understand what is factorial and how are we going to use it, how can we simplify if we have the expression in terms of factorial sign. All right. Well, so this is it in today's lecture. My name is Shyam Manav signing off. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.